Hi guys, welcome back. Today we'll be starting the curriculum of grade 10 and the first chapter that we'll be discussing is the gaseous exchange. I'll give you the brief introduction today and we'll start from the difference between the breathing and cellular respiration. Now the word breathing can be interchangeable with that of the gaseous exchange. इन दोनों words को हम लोग interchangeably use कर सकते हैं. होता क्या है? During this process, oxygen is taken in from the environment. हमारे lungs जो हैं ऑक्सीजन को breathe in करते हैं and they breathe out carbon dioxide. These are the two processes. Taking in of oxygen whereas giving out of carbon dioxide. This is the simple process. और किस तरह कर रहा है? It is occurring through our lungs. हमारे lungs जो हैं उसके अंदर function perform कर रहे हैं. So you can see there is no chemical reaction involved in this process. So it is just a physical or a mechanical process. There is simple mechanism in which lungs function and oxygen is taken in whereas carbon dioxide is taken out. So it's a physical or mechanical process. Whereas when we talk about cellular respiration, first of all the word is telling us cellular, it is occurring at a cellular level. सेलुलर लेवल पे जब अकर करती है कौन सा ऑर्गेनेल इसमें काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, इफ यू नो, राइट. तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास होता क्या है? इफ यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, सिंपल ऑक्सीजन इज टेकन बाय द मसल सेल्स और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर करता है एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. हाउ? द फूड वी आर टेकिंग उसके अंदर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. This carbon hydrogen bond will be broken down by oxidation reduction reaction. Simple. Oxidation reduction reaction will break down the bond. जब ये bond break करेगा, it will release carbon dioxide, whereas energy will also be produced in this process. And this energy will then be utilized in our body for different purposes, especially during exercise. हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमें मोर पावर इज रिक्वायर्ड, मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. क्लियर? तो फॉर दिस पर्पस मसल सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन अकर होना शुरू हो जाती है. दैट विल देन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ऑल्सो you can see there is a complete chemical reaction that is involved during cellular respiration. So it is a physical process, but along with that it is also a biochemical process. Why? A biochemical reaction is involved in it. इसके अंदर एक biochemical reaction क्या होता है? Involved होता है. So it is both a physical and a biochemical reaction. I hope it is clear. Also another thing, हमारे पास जो breathing और gaseous exchange and cellular respiration, these are two processes that are occurring side by side. होता क्या है? ऑक्सीजन टेकन इन होती है बाय द लंग्स. जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं ऑब्वियसली इट इज़ देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वाया अ पर्टिकुलर प्रोसेस, और वो जो ब्लड हमारे पास मसल्स में ऑक्सीजन को लेके जाता है, दैट ऑक्सीजन इज देन यूटिलाइज्ड देयर फॉर व्हाट पर्पस? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाई जाती है. हमारे पास जो फूड है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन द शुगर, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, और वो रिलीज करता है फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है. This carbon dioxide is then again taken by the deoxygenated blood towards the lungs, और उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस अकर करने के बाद it is breathed out from the body. Yeah, this is how the two processes, breathing and cellular respiration, are occurring side by side. I hope it is clear. This was the brief introduction. Now comes the gaseous exchange occurring in the plants. प्लांट्स के अंदर किस तरह अकर करती है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज, और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर जो अकर करवाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इट अकर्स इन द लीव्स एंड यंग स्टेम्स. किस तरह अकर करते हैं उसके अंदर? देयर आर थ्री प्रोसेसेस. एक होता है हमारे पास स्टोमेटा के थ्रू, एक होता है एयर स्पेसिस के थ्रू, एक होता है क्यूटिकल के थ्रू. कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं दीज थ्री थिंग्स? स्टोमेटा क्या होते हैं? These are basically the spaces present between the guard cells. These are guard cells. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास guard cells हैं. Whereas जो space इनके बीच में present है, this space is known as stoma or stomata, if it is plural. Yeah. So these are the
गार्ड सेल्स, और इनके अंदर हमारे पास जो है स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज होती है। यू कैन सी हियर, ये हमारे पास जो है लोअर एपिडर्मिस है, लीफ की है जो लोअर लेयर होती है, उसके बीच में आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्टोमा है, देयर आर स्पेसेस दैट इज नोन एज स्टोमा, और उसके साइडों पे गार्ड सेल्स हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेन ब्रीदिंग अकर करती है, सॉरी मेन गैसियस एक्सचेंज जो अकर करती है ड्यूरिंग इन प्लांट्स, इन लीव्स एंड यंग स्टेम, वो अकर करती है वाया दी स्टोमा। मेजर जो है हमारे पास स्टोमेटा के थ्रू अकर करेगी। अदर देन दैट देयर आर एयर स्पेसेस प्रेजेंट, कहाँ पर? स्टेम में भी प्रेजेंट होती हैं, whereas it is also present within the leaf। जो हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ये जो मीजोफिल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके बीच में आपको ये स्पेसेस नजर आ रही, क्लियर? दीज आर द एयर स्पेसेस। These air spaces are responsible for the exchange of gases, taking in of oxygen, giving out of carbon dioxide. Or in case of photosynthesis, the reverse will be there. Clear? So this is the process how it occurs. यहाँ पर हमारे पास जो है these are the air spaces that will be responsible for the gaseous exchange. The third thing is the cuticle. होती क्या है क्यूटिकल? हमारे पास लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जस्ट अबव द एपिडर्मल लेयर। एक वैक्सी लेयर है, उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, एंड दिस क्यूटिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज एज वेल। दीज आर द 3 प्रोसेसेस और टाइप्स जिसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज अकर कर सकती है यंग लीव्स में और स्टेम्स में। आई होप इट इज क्लियर। नाउ ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम प्रोसेसेस डिफरेंट अकर कर रहे होते हैं। किस तरह डिफरेंट अकर करते हैं, वी विल डिस्कस दैट। डे टाइम में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम कि डे टाइम में हमारे पास क्या होता है। ऑब्वियसली सनलाइट इज देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स फूड किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस फूड वाया फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो डे टाइम में बोथ द प्रोसेसेस विल अकर, फोटोसिंथेसिस भी अकर करेगा, वेयर एज सेलुलर रेस्पिरेशन विल ऑल्सो अकर ड्यूरिंग द डे टाइम। बोथ द प्रोसेसेस विल अकर। होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी combine together to form the food in the form of glucose C6H12O6, और साथ साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डे टाइम में अकर कर रहा है। रिवर्स इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें क्या होगा, जो फूड प्रोडक्ट है दैट इज ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and water plus energy. You can see it is the complete reversal of photosynthesis. बताने का मकसद क्या है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। यहाँ पर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग डे टाइम। साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में अकर करेगी, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन दी फोटोसिंथेसिस। वो कहाँ यूटिलाइज होगी, वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो रही है। तो ड्यूरिंग डे टाइम जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। दिस इज हाउ दी exchange of gases occur in both these processes, और ये डे टाइम में दोनों प्रोसेस अकर करें। क्लियर? अब बात होती है हमारे पास नाइट टाइम की। नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में हमारे पास क्या होगा, दिस इज द नाइट टाइम। नाइट टाइम में हमारे पास ऑब्वियसली देयर इज नो सनलाइट, व्हेन देयर इज नो सनलाइट देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। क्लियर? सिंपल क्या होगा, जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर करेंगे, इन्वायरमेंट से जो है हमारे पास ऑक्सीजन को टेक इन किया जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट वाया द स्टोमेटा। तो सिंपल ये प्रोसेस अकर करेगा ड्यूरिंग द नाइट टाइम। क्या ये डायग्राम आपको थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो क्लियर करवाएगी कि फोटोसिंथेसिस में जो है किस तरह हमारे पास अकर करता है, और जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह फोटोसिंथेसिस में जाता है। वी नो फोटोसिंथेसिस अकर इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में अकर कर रहा होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, साथ हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। दिस विल गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, सेल के अंदर होता है हमारे पास, वी नो दैट। ऑक्सीजन जाएगा, दिस विल कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, और बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल देन बी यूटिलाइज्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अलोंग विद द सनलाइट
energy. Clear? This is how both of these are helping each other. Both of these processes are helping each other. Clear? So this was all about the two processes that occur during nighttime or the daytime. Now we will discuss about woody stems and mature roots. उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह कर करता है, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह कर करता है. When you talk about woody stems or mature roots, they are covered by a dead layer, जिसको हम लोग बोलते हैं bark. We call it as bark. It is impervious to gases and water. Impervious का मतलब क्या होता है? That does not allow anything to pass through it. उसके थ्रू कुछ पास नहीं कर सकता. So it is impervious to gases and water. If it is impervious and it is surrounding the wood stems and mature roots, तो gaseous exchange किस तरह करेगा? Gaseous exchange will occur via the pores that are present on the bark, which are known as lenticels. These are the pores जो आप डायग्राम में देख सकते हो. ये जो छोटे छोटे आपको pores नजर आ रहे हैं, these are lenticels. ये lenticels responsible होते हैं for the gaseous exchange in the woody stem and mature roots. Right? Then comes the young roots. Simple. Root hairs present होते हैं हमारे पास young roots के अंदर. These root hairs are present in the soil. You can see that. ये soil है हमारे पास. Soil के बीच में आपको नजर आ रहा होगा ये air spaces है. These air spaces trap the oxygen, and these oxygen will then be absorbed by the young roots, और वो give out करेंगे carbon dioxide जो कि इधर ही air spaces में trap होंगे, and then it will move toward the environment. So simple. Young roots के अंदर हमारे पास air spaces जो होती हैं in the soil, those will help them to exchange the gases. Yeah. Then comes the aquatic plants. Aquatic meaning that is present in the water bodies. पानी के अंदर जो plants present होते हैं उनके अंदर कैसे gases exchange occur करती है? It occurs via absorption. Absorption के through occur करेगी. Photosynthesis भी occur करती है, cellular respiration भी occur करती है. Simple process क्या होता है? From the water, plants take in oxygen and gives out carbon dioxide. Or in case of cellular respiration, it takes in oxygen and in case of photosynthesis, it gives us oxygen and takes in carbon dioxide. Whereas in case of respiration, it takes in oxygen and gives out carbon dioxide. Simple process इस तरह करता है. Both these processes will occur, लेकिन किसके through? Just by the process of absorption. पानी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसी को एक्सचेंज कर लिया जाएगा via the plant. Clear? So this is how the gaseous exchange occur in different parts of the plant. I hope everything is clear. If there is any confusion, let me know in the comment section. Would love to hear back from you. And subscribe to my channel. Like it, share it. Follow me on Instagram. And till next time, stay safe. Bye-bye.